Kapatisi TV. Puli MBBS ha India ne Shabal ri kum ha Russia, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines bat kiwe de kiri. Kidi kitop medical colleges bat ru ha kador babiang. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Umrupa Premium Meghalaya. Kinong khayi ganong ba Shillong, kibadan hapo kashatri jong ka Business Community of Shillong, lakintu ka sorka pedeng bagan pinjanai, haga bede bagajing penyeso, iki surok bagi lenti gisengkin, haga jala Meghalaya, daga basnai ka kat lingsun ka papaka, bat ban penyeso, iki lentiral, hadu ka shnong bernihan, Ripoy District, kanang bakan kinti ka roy kapal, bat ka yokakan. Ya kani ka jing angno jong gani ka kinhun, lapin sngo de kinong khayi ba pher, bagi nong sengkam, haga jing kran bu menteri kena ka sorka pedeng. Bukmi ikatanat corporation ukrishan pal gorjar haga jingalang kablalong ha hotel Polo Towers Shillong haga khat nyotrik unai tung arachar alpusan nakaliang jo menteri ka sarkar pring gore tho bo unsara yakari ka jingdawa jonga kinhon kinong khayi na Shillong banyikran bu menteri ka tanat kampo yeng Amit Shah bashu menteri rang ba do kri Narendra Modi. Krishan ji, I just want to request this. On behalf of the state of Meghalaya, I'm also the former State General Secretary of BJP Meghalaya Pradesh. So I am Dr. Ivaris Mursing. So my concern is this, when we come into farming and with regards to animal husbandry and veterinary, so I feel that why not this, since we are from the corporation department, so please convey this message that we would like to do large-scale farming with regards to livestock, because I think Meghalaya is also the other side of Switzerland. Why not we can venture much into dairy farming and all that? And we do have a lot of cooperative societies. So I think we need to really concentrate on that. So this is my humble request on behalf of the state and also our Honorable Minister who is also looking after this. So I think we can venture not only milk mission or piggery mission, rather we should go into ranch because Meghalaya has got large potential of land. Thank you. Honorable Union Minister Krishan Pal ji, बहुत अच्छा लगा ये सुन करके जो अच्छे कार्य हमारे बीजेपी सरकार मोदी सरकार ने किए हैं. There is no doubt that we have seen the change. मैं दो चीज़ों पर जो हमारे मानस चौधरी जी ने दो पॉइंट रखे थे, मैं उस पॉइंट पे थोड़ा सा डिटेल देना चाहूँगा आपको क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एक है कि हमारा जो एयरपोर्ट एक्सपेंशन वर्क चल रहा है, लेकिन हमारी जो उड़ान स्कीम जो मोदी जी अनाउंस करते हैं वो उड़ान स्कीम को रिन्यू नहीं किया गया. ये मुझे स्टेट गवर्नमेंट ने बताया है, रिन्यू नहीं किया गया है, उसका पैसा नहीं दिया गया. बिकॉज ऑफ विच एज इट इज़ हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की आपस की कनेक्टिविटी बहुत खराब है. बिकॉज हिली टेरेन है, रोड से जाना संभव नहीं है. तो सारी फ्लाइट्स यहाँ से ऑपरेट होती थी. अगरतला मतलब त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, बहुत सारी फ्लाइट्स बंद कर दी गई. तो मेरी ये आपसे आग्रह है कि जब तक ये एक्सपेंशन प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होगा तो 2-4 फ्लाइटें खाली कलकत्ता की चल रही हैं, ये बाकी की फ्लाइटें भी कंटिन्यू की जाए. बिकॉज वो हमारे टूरिज्म को बहुत इफेक्ट कर रही है. और ये 15 मिनट की फ्लाइट लेने के लिए वी हैव टू ट्रैवल टू गुवाहाटी. 3 घंटे गुवाहाटी जाके वो 2 घंटे पहले रिपोर्टिंग करके 5 घंटे यहाँ लगते हैं और 15 मिनट की फ्लाइट होती है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर. सेकेंड पॉइंट जो रोड्स के ऊपर जो बात की गई है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक रोड है जो जिसको बोलते हैं NH46, जो ईस्ट जैंटिया हिल से जो लास्ट बॉर्डर है ईस्ट साइड मेघालय का, राटाचेरा बॉर्डर असम को टच करता है. अगर आप यहाँ से ये 3 स्टेट्स को कनेक्ट करता है, ये मिजोरम को, त्रिपुरा को और मणिपुर को. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोड है. इसमें एक 25-30 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो मेघालय के अंदर आता है और असम शुरू होने से पहले खत्म हो जाता है. उस 25-30 किलोमीटर के स्ट्रेच को कवर करने के लिए 2.5 घंटे लगते हैं. और हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं, कई प्रकार के ऑर्डर हुए हैं, पर वो रोड कोई कारण से ठीक नहीं हो रही है. तो मुझे ऑल इंडिया में बहुत सारे रोड्स का विस्तार होता नजर आता है, पर मेरी स्टेट में तो ये मैं आपके थ्रू ये कन्वे करना चाहता हूँ. धन्यवाद. में मेघालय में मंत्री श्री एल हैक जी,
साथ में ही विराजमान श्री मानस चौधरी जी, सीनियर जर्नलिस्ट, शिलोंग टाइम्स, श्रीमती दिया राठौर जी, और आज के इस गेट टुगेदर में आए हुए सभी भाइयों बहनों, मुझे आप सबसे मिलकर बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है। आप सब लोगों से मुझे मिलाने में जिनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही, मेरे बड़े भाई कैलाश वर्मा जी, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे आप लोगों से मिलने का मौका दिया। उससे पूर्व चौधरी साहब ने, मंत्री जी ने मेघालय के बारे में क्या क्या जरूरतें हैं, यहाँ लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं, सब विस्तार से कहा। रोड के बारे में, ट्राइब्स के बारे में, कॉर्पोरेट सोसाइटियों के बारे में, एयरपोर्ट के बारे में, टूरिज्म के बारे में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपकी इन सब भावनाओं को मैं देश के प्रधानमंत्री और देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी तक जरूर पहुंचाऊंगा। बहुत बातें हैं करने के लिए, लेकिन एक अनुभव तो आप भी करते होंगे कि जब से आप लोगों ने मोदी जी के हाथ में देश की बागडोर दी है, तब से देश में भी और नॉर्थ ईस्ट में और उसी का हिस्सा मेघालय में भी आपको अंतर तो स्पष्ट दिखाई देता होगा। इन 10 सालों में देश ने जिस गति से तरक्की की है, पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। बहुत चीजें कहने के लिए समय नहीं है क्योंकि 9 बजने वाले हैं, लेकिन आप सब जानते हैं 2014 में भारत दुनिया की 10वीं अर्थव्यवस्था था। हमारे देखते देखते 10 सालों में भारत 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था, 5वीं इकोनॉमी बन गया। और अभी IMF की जो रिपोर्ट आई है, जिसकी घोषणा बाकी है, कि भारत ने अभी जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। अब चौथी अर्थव्यवस्था, चौथी इकोनॉमी भारत। और यही नहीं, अगर दुनिया के इकोनॉमिस्ट, जो बड़े बड़े संस्थाएं हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, सबका ये आकलन है कि 2027 के अंत तक भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहा है। ये मैं नहीं कहता, ये दुनिया की जो इकोनॉमिस्ट, जो अर्थव्यवस्था का आकलन करती हैं, वो संस्थाएं, वो अर्थशास्त्री बोले। ये क्यों हुआ आप सब जानते हैं, क्योंकि देश की बागडोर एक मजबूत और ईमानदार व्यक्ति के हाथ में है। क्योंकि आप सब लोग व्यापार करते हैं, मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, व्यापारी के लिए इससे अच्छा माहौल कभी हो नहीं सकता जैसा आज है। क्योंकि मोदी जी की सोच नेशन फर्स्ट, देश पहले, बाकी सब बाद में। और इसी सोच के कारण
तेजी से आगे बढ़ा है। मेरे पास आंकड़े हैं कि हाईवे 70-75 सालों में कितने किलोमीटर बढ़े और इन 11 सालों में कितने किलोमीटर। तो मैं उस विभाग में रहा हूं नितिन जी के साथ। 70 सालों में नेशनल हाईवे 95,000 किलोमीटर, आज 1,46,000 किलोमीटर, 55,000 किलोमीटर इन पिछले 10-11 सालों में। पहले 8 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार थी, आज 36 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार है नेशनल प्रतिदिन। एयरपोर्ट दुगने हो गए, रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन तिगुना हो गया, लाखों गांवों को इंटरनेट से जोड़ दिया, ग्रामीण सड़कें डबल हो गई, यूनिवर्सिटी हो, मेडिकल कॉलेज हो, MBBS MD की सीटें हो, सब डबल हुई। सभी देशों से भारत का व्यापार डॉलर में होता था। आज कई देशों से भारत का व्यापार रुपयों में होता है। जो देश कभी अपनी टेक्नोलॉजी भारत के साथ साझा नहीं करते थे, जो डेवलप्ड कंट्री है, फ्रांस है, अमेरिका है, जापान है, रशिया है, आज लोग लंबे समय के लिए अपनी टेक्नोलॉजी भारत के साथ साझा करने के लिए तैयार हो गए हैं। यानी कि अब जेट भी और ड्रोन भी भारत में बनेंगे। ऐसी अनेक चीजें हैं। आप रेलवे स्टेशनों को देखिए, क्या हालत होती है। आज रेल की स्पीड देखिए, रेल की साफ सफाई देखिए, रेलवे का खाना देखिए, वंदे भारत, मतलब हर चीज में देश आगे बढ़ा है। आज 1300 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत योजना के तहत अपग्रेड कर रहे हैं। हजारों रेलवे फाटक जहां घंटों आदमी रुकता था, आज उनको या तो रेलवे ओवरब्रिज या रेलवे अंडरपास बना। तो ऐसी बहुत चीजें मेरे पास सारे आंकड़े हैं, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं। मोदी जी के आने से पहले प्रधानमंत्री कितनी बार नॉर्थ ईस्ट में आते थे। मैं मंत्रियों की बात नहीं करता, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की बात कर रहा हूं। 2014 से लेकर अब तक कितनी बार नॉर्थ ईस्ट में प्रधानमंत्री आए। और ऐसा कोई महीना नहीं होगा जब मोदी सरकार का कोई ना कोई मंत्री नॉर्थ ईस्ट में या मेघालय में नहीं आता होगा। अब 2014 से पहले नॉर्थ ईस्ट के लिए केंद्र के बजट में कितना हिस्सा होता था, आज कितना हिस्सा होता है, ये भी आपसे छुपा होगा। अलग से एक मंत्री को यहाँ का नॉर्थ ईस्ट का इंचार्ज बनाया हुआ, यहाँ के विकास के कामों की समीक्षा करने। मैं भी आज आया हूँ, तो यहाँ पर जो केंद्र सरकार यूनियन स्टेट को जो पैसा देता है, उसका कैसे कैसे काम हो रहा है, उसकी समीक्षा करने अधिकारियों के साथ कि अभी क्या क्या जरूरत है, कितना पहले। मुझे आज मैंने समीक्षा की, अधिकारी बैठे, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है। और मैं मेघालय की सरकार को, यहाँ के मुख्यमंत्री को और मंत्रियों को, अधिकारियों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो पैसा मिला है उसको खर्च करने में भी उन्होंने तेजी दिखाई है और हर क्षेत्र में अच्छा काम यहाँ की सरकार और अधिकारी कर रहे हैं। मैंने आज अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसमें मैंने
नॉर्थ ईस्ट प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता थी, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं ये देश एक शरीर है और शरीर का कोई भी अंग कमजोर होगा तो शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता। इसलिए देश का कोई भी राज्य अगर कमजोर होगा तो वो देश विकसित नहीं हो सकता, वो विकसित देश कभी नहीं बन सकता। Hey, up, ruko. Schwaba finchet da kajo shikajo ko umpiang balapin don kam. Up schwa, namar kaneka kta ya kakot kakya jong fi, pat kamaryang rukum jo. Da ka bashet da kaneka umpiang, kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pim day pat bante shanala, ne bantang pendono. Henry, minta ka ruko, ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban pen kala ya kane ko umpnyang shaka biodiesel tinamar kata limba ka ruko kakot kakya par kamaryang rukan umkta syo